Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Dear students, welcome to the science class. This is your science book which is Science Fact File 1. Today we are going to start the topic more electrical components on the page number 53 on the textbook. Dear students, here you can see the electric circuit which is a closed loop made of conductors and other electrical elements through which electric current can flow. Students, here you can see the simple electrical circuit, and simple electric circuit consists of four elements: battery, switch, lamp or bulb, or wire. Dear students, wire connected each of the electrical components together. So let's start reading and understand the concepts which is given in this topic. Electrical circuits are part of our everyday lives. Electrical circuits are made up from electrical components. There are many components that can be used in electrical circuits. The table shows a few of them. Here you can see wire, and the symbol of wire in electrical circuits is straight line. The next one is cell or battery. Here you can see the cell or battery, and here is the symbol of the cell or battery in the electrical circuits. And here is the symbol of lamp and bulb, and here is the symbol of motor in the electrical circuits. Here is the symbol of bell, buzzer and switch, and these symbols is used in the electrical circuits to make up the electrical circuit. The next is connecting components. Dear students, जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, तो इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएं तो उसमें तमाम कंपोनेंट्स हम सही से जोड़ें ताकि सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सके. Dear students, here you can see the circuit diagram of a torch. Dear students, आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में तमाम कंपोनेंट्स अच्छे से कनेक्टेड हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लाइट बल्ब की प्लेस पे स्विच को अटैच कर दें तो हमारे सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा और सर्किट अच्छे से और प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. डियर स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम में वायर्स में जो एरोस हैं वो फ्लो ऑफ करंट को शो कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्टेड कर रहे होंगे तो उसमें एक चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है कि हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए और ग्रीस और डर्ट से फ्री होने चाहिए. इसके अलावा हम कॉपर वायर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि कॉपर वायर्स इजीली करोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा रिलायबल और लास्ट लॉन्गर नहीं होती. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट करेक्टली for the electricity to flow easily. Circuit connection must be clean and free from grease and dirt. Dear students, हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्शन जो है वो क्लीन भी होना चाहिए और वो ग्रीस और डर्ट से बिल्कुल फ्री होना चाहिए. Copper wires, for example, soon get dull if they are left for a while. डियर स्टूडेंट्स, कॉपर वायर्स जिसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं इजीली करोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इतनी रिलायबल नहीं होती और हमारा कनेक्शन पोर हो सकता है. इसलिए हम इसके अल्टरनेटिव गोल्ड और सिल्वर की वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं. और गोल्ड और सिल्वर की जो वायर्स हैं इनको जल्दी जंग नहीं लगता और ये रिलायबल होती हैं और लास्ट लॉन्गर होती हैं, ज़्यादा देर तक चलती हैं. The next one is more switches. Dear students, you know that switches किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं. Here you can see the different switches which is bell push and reed switch. And here is two positions in this switch which is on and off. Dear students, bell push switch mostly
ऑफ रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और जैसे ही हम प्रेशर रिमूव करते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है और ये स्विच ऑफ हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बेल पुश स्विच जो है वो स्प्रिंगी कॉन्टैक्ट है। जिस तरह स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, और जैसे ही हम प्रेशर रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। A bell push switch is normally off. It is only on when it is pressed. When the pressure is removed, a springy contact returns the switch to off. Dear students, the next one is reed switch. Dear students, ये स्विच मैग्नेट के ज़रिए से ऑपरेट होते हैं और ये मोस्टली मेटल के बने होते हैं, और जैसे ही हम कोई मैग्नेट इसके करीब लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और स्विच ऑन हो जाता है, और जैसे जैसे हम मैग्नेट को इससे दूर लेके जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्विच है वो ऑफ हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रीड स्विचेस को एज अ सेंसर यूज़ किया जाता है और इसे हम ऑटोमेटिक डोर लॉक्स, एयर बैग्स, पार्किंग ब्रेक्स, सीट एट्सेट्रा वगैरह में यूज़ करते हैं। सो व्हेन अ मैग्नेट इज़ हेल्ड क्लोज टू द स्विच, द कॉन्टैक्ट्स क्लोज एंड द स्विच इज़ ऑन। The switch is off when the magnet is removed. Reed switches are very useful in burglar alarm circuits. Dear students, here is the burglar alarm. It is an electronic device that emits a loud noise or other alert when someone attempts to gain unauthorized entry to a building. Burglar alarm is a security alarm. डियर स्टूडेंट्स, बर्गलर अलार्म एक सिक्योरिटी अलार्म है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसे हम यूज़ करते हैं जब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी भी बिल्डिंग या किसी भी होम के अंदर एंटर होता है तो ये अलार्म एक नॉइज़ क्रिएट करता है, और ताकि उस बिल्डिंग, होम या किसी भी ऑफिस के अंदर जहाँ पर बर्गलर अलार्म मौजूद है उनको अलर्ट किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ दी सर्किट डायग्राम ऑफ बर्गलर अलार्म, और रीड स्विचेस को बर्गलर अलार्म में यूज़ किया जाता है। अ रीड स्विच इज़ फिक्स्ड टू अ डोर और विंडो फ्रेम एंड अ मैग्नेट इज़ फिटेड ऑन टू द डोर और विंडो। डियर स्टूडेंट्स, रीड स्विच को हम डोर और विंडो फ्रेम पर फिक्स करते हैं, जबकि मैग्नेट को हम डोर और विंडो पर फिक्स कर देते हैं, और जैसे ही डोर या विंडो ओपन होती है जो स्विच का कांटेक्ट होता है वो ओपन हो जाता है और अलार्म क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इफ द डोर और विंडो इज ओपन, द स्विच contacts ओपन एंड अलार्म इज सेट ऑफ। Dear students, in this diagram we learn about how a reed switch works. Students, in first diagram the switch is off and the fixed contact is reed switch and the springy contact is magnet. Dear students, जैसे जैसे मैग्नेट रीड स्विच से दूर जाएगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड डायग्राम में आते हैं तो सेकंड के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेट और रीड स्विच है वो दोनों क्या हैं, क्लोज हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैग्नेट रीड स्विच के पास आया मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गई, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुई तो हमारे पास स्विच जो था वो ऑन हो गया। डिड यू नो, इन सम स्विचेस द कॉन्टैक्ट्स आर प्लेटेड विद गोल्ड और सिल्वर। These do not corrode as easily as copper or brass, so they are more reliable and last longer. Dear students, कुछ स्विचेस के अंदर हम कॉपर की बजाय गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करते हैं क्योंकि इनको जंग जल्दी नहीं लगता जितनी जल्दी कॉपर को लगता है और ब्रास को। इसलिए
ये स्विचेस ज़्यादा रिलायबल हैं और लास्ट लॉन्गर हैं, ज़्यादा देर तक चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट योर सेल्फ ऑन द पेज नंबर 54. So let's start. The first question is, draw the symbol for a bulb, a motor, a buzzer and a bell. Dear students, here you can see the symbol which is we use in the circuit diagram. Dear students, the second question is, list the energy changes that takes place in the following electrical components: a buzzer, a lamp, a motor and a battery. Students will know that buzzers convert electrical energy into sound energy. A lamp, it is convert electrical energy into heat and light energy. A motor, it converts electrical energy is changed into mechanical energy. A battery, it converts chemical energy into electrical energy. The third question is, why is it important to keep electrical components clean? क्यों ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं वो क्लीन होने चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्लीन सो डैट दे डोंट corrode, दे बिकम रिलायबल एंड लास्ट लॉन्गर। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हमेशा क्लीन होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा देर तक चलें और रिलायबल हों। फोर्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द इंसुलेटर बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ बेल पुश switch when it is off? The answer is, there was air between the contacts of a bell push switch. They are simple, inexpensive device. The last question is, explain how a reed switch works. Dear students, as we know that a reed switch is operated by a magnet. When a magnet is held close to the switch, the contacts close and the switch is on. The switch is off when the magnet is removed. Dear students, I hope you understand the basic concepts which is given in this topic. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.